Hello student, how are you? Good morning everyone. Okay, as you know that in our previous video we did the chapter The Little Girl, and in which we read about a girl who is much afraid from her father and she never tried to go in front of her father. So what happened in this chapter? This is a very beautiful story, and we did a little bit part of this story earlier in our previous video. So I am just explaining that part first, and after that we will continue with our next portion. So in our previous class, first of all, the author was describing about the situation or the activities that was going on in that house. So first of all, the author is starting this chapter with an incident that whenever his father goes to office, he always comes in his room and kisses her, give a casual kiss, and for that in reply the girl said her goodbye. As his father goes from there, and the voice of his carriage become faint, then she becomes so relaxed. जैसे ही उसकी गाड़ी वहाँ से जाती है वो अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करती है. सो आफ्टर दैट एज ही केम बैक, जैसे ही वो वापस आए, मतलब उसके फादर की बात हो रही है. हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट हर फादर, दैट एज हर फादर कम्स बैक एट होम इन इवनिंग, सो एट दैट टाइम शी स्टैंड्स नियर द स्टेयरकेसेस एंड watch everything that is going on there. So as father comes and sit down on the sofa, and then her mother call her to come down and put off her father's shoes. कि उसके माँ जो है वो उसे बुलाती है और कहती है कि तुम अपने पिता के जो शूज़ हैं उनको उतार करके रख दो. तो she entered in the drawing room and there she stood, और वहाँ पर वो खड़ी रहती है, अंदर आती है और खड़ी रहती है. तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है, व्हाई आर सो मच अफ्रेड, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो. After that father gives her instructions that please put off my shoes and put them outside from this drawing room. आप मेरे शूज़ उतारो और इसे ड्राइंग रूम से बाहर रख दो. Then after that again her father gave her instruction. उसके पिता उसे instructions देते हैं. क्या instructions देते हैं? That also take my teacup from here, कि मेरे टी कप जो है वो भी यहाँ से ले जाइए. And then she asks from her that are you a good girl, कि तुम एक अच्छी लड़की हो ना. At that time she said that no, I don't know that I am a good girl or not. Then he said, what, you don't know you are a good girl, why are you stammering? So when she gives that answer, जब वो ये उत्तर देती है, at that time she stammers, वो हकलाती है. और जैसे ही वो हकलाती है तो हकलाते ही उसके फादर उसे पूछते हैं कि why are you stammering, तुम हकला क्यों रही हो. At that time the author is saying that just in front of her father she stammers, otherwise this was not her habit. वो केवल अपने पिता के सामने ही स्टैमर करती है, अदरवाइज उसकी कोई ये आदत नहीं थी. So now on Sunday, this is a topic, we can say that this is an incident of Sunday. On Sunday, father and mother both were at home, and her grandmother called her to टॉक नाइसली विद हर पेरेंट्स. कि जब माता और पिता संडे को घर पे थे तो उसके ग्रैंड मदर ने क्या किया, उसकी दादी माँ ने जो है बुलाया इसको नीचे, लड़की को नीचे बुलाया. काजिया इसका जो है वो नाम है. तो काजिया को उसने जो है वो केजिया को नीचे बुलाया और नीचे बुला करके उसे कहा कि तुम अपने माता पिता से बात करो. व्हेन शी कम्स डाउन, व्हाट शी सीज दैट हर फादर इज लाइंग ऑन सोफा. उसके पिता जो है वो सोफा पे लेटे हुए हैं. एंड हैंकरचीफ वॉज ओवर हर फेस, एक हैंकरचीफ उसके जो है, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, एक रुमाल उसके चेहरे पर था. एंड हिज लेग्स इज़ ऑन कुशन, उसके जो लेग्स हैं वो कहाँ पर हैं, कुशन के ऊपर हैं, तकिए के ऊपर हैं. एंड ही इज़ इन अ वेरी साउंड स्लीप एंड स्नोरिंग, वो बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है और क्या कर रहा है, खर्राटे ले रहा है. टिल दिस पार्ट वी हैव डन.
यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमने कर लिया. नाउ कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज ऑन पेज नंबर 34. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. After that she went into the room and sat there on a stool, and she stared her father till he woke up. वो उसके बाद में गई, स्टूल पे जा करके बैठ गई और वहाँ पर तब तक उसे घूरती रही जब तक कि उसके पिता जो है वो जाग नहीं गए. As her father woke up, जैसे ही उसके पिता जो है वो जागे, her father asked a question from her. उसके पिता ने उसे एक क्वेश्चन पूछा. क्या पूछा? Why are you staring at me? तुम मेरी तरफ घूर क्यों रही हो? What's the matter? क्या मामला है? Doesn't stare so, Kezia, you look like a little brown girl. And after that he said that Kezia, don't look on me like this. You are looking like a brown owl. Owl means उल्लू. कि तुम एक ब्राउन उल्लू के जैसी तुम मेरे सामने नजर आ रही हो. So this incident over there, and after that one day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. What happened there? One day she was affected from cold. Cold means cold. Cold का मतलब होता है ठंड लग जाना, यानी कि खांसी जुखाम. Okay, so cough and cold, as you know. So she was affected from the cold, so that's why she was kept inside. उसको अंदर ही रखा गया था, घर के अंदर ही. So her mother came to her and said that next week there is a birthday of your father. अगले वीक जो है वो तुम्हारे पिता का बर्थडे है, and you should give him a gift, and I suggest you to make a very beautiful gift, a pin cushion. Make a very beautiful gift that is a pin cushion from a very beautiful yellow silk. उसकी माँ जो है उसे ठंड लगी हुई थी, उसे कफ एंड कोल्ड था, तो उसकी मदर ने उसे कहा कि तुम जो है एक काम करो, अंदर ही रहो. और उसकी माँ ने कहा कि अगले हफ्ते जो है तुम्हारे पिता का बर्थडे है, एक काम करो, एक बढ़िया सा पिन कुशन जो है वो बनाओ, जिसकी वजह से पिन कुशन जो है वो तुम बनाओ जो कि एक बहुत ही बढ़िया से सिल्क के जो है वो येलो सिल्क के क्लोथ से बना हुआ टुकड़े से बना हो और जिसे तुम अपने पिता को गिफ्ट कर सको. तो उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. But what to fill it with? That was the question. After that, she did labor. उसने कड़ी मेहनत करी, परिश्रम. लेबर यानी कि परिश्रम, मेहनत करना. विद लेबरसली यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम के साथ में. व्हाट शी डिड? शी वॉज मेकिंग ए कुशन. ओके, सो ए कुशन हैड 4 sides, हैज़ 4 sides. कुशन जैसे उसकी क्या है, 4 sides होती हैं. विद लेबरसली शी स्टिच्ड 3 sides. बहुत ही मेहनत के साथ में उसने क्या किया, ये 3 sides हैं उनको स्टिच कर दिया. एंड शी लेफ्ट 1 side जस्ट टू पुट सम स्टफ इनसाइड द कुशन. बट नाउ शी हैज़ ए क्वेश्चन हियर. What was the question? That what she should fill inside that cushion. अब उसके सामने एक क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन क्या था कि उसे इस कुशन के अंदर क्या भरना चाहिए. अब वो चीज उसे मिल नहीं रही थी. For that what she did? Next we will read same thing. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into teeny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. What she did? There was a question in front of her that what was the thing that I should put in that cushion. For that, she looked. She saw that her grandmother was out in the garden. She went silently into her mother's room. उसने देखा कि भी माँ जो है वो दादी माँ जो है वो गार्डन के अंदर है, तो वो चुपचाप अपनी माँ के कमरे में गई, क्योंकि उसके सामने एक प्रश्न था. प्रश्न क्या था कि वो कौन सी चीज़ें होंगी, वो क्या स्टफ होगा जो वो इसके अंदर जो है वो डालेगी, उस कुशन के अंदर तकिए में डालेगी. तो उसने क्या किया, वो चुपचाप जो है वो अपनी मदर के कमरे में गई.
एंड देयर शी सर्च्ड, उसने वहां पर तलाश की, एंड सडनली शी फाउंड some paper on a table. She found some papers on the table, fine papers, looking very beautiful papers, and she picked all those papers and tore them up and put it into the cushion, and then she stitched or sewed that fourth part, and her cushion was ready. अब उसने क्या किया, वो कमरे में गई, कमरे में उसे टेबल पे क्या किया, उसने तलाश की, तलाश में उसे क्या किया, उसे एक टेबल जो है वो वहाँ पर था, उस टेबल के अंदर जो है ऊपर रखे हुए उसे कुछ पेपर मिले, बहुत ही बढ़िया से पेपर थे। उसने उन पेपर को उठाया और उनको क्या किया, उनको फाड़ा, और फाड़ करके उसने उन पेपर्स को जो है कुशन के अंदर डाला और उसने फोर्थ साइड जो है उसको सील दिया। अब क्या हुआ, जैसे उसने फोर्थ साइड सीली, उसका कुशन तो तैयार था, बट शी हैड टू पे, उसे भुगतना पड़ा इसके लिए। क्या भुगता उसने? इन द इवनिंग एज फादर केम बैक ही ऑल्सो सर्च्ड फॉर दोज फाइन ब्यूटिफुल पेपर्स, बट ही डिडंट फाइंड देम एट देयर ऑन द टेबल। शाम के समय फादर आए और उन्होंने भी तलाश की वो पेपर जो है उनको ढूंढने के लिए, पर वो जो कागज़ है वो उसे वहाँ पर नहीं मिले, और जब वो कागज़ उसे वहाँ नहीं मिले, ही स्टार्टेड स्क्रीमिंग, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। लेट्स रीड। द नाइट देयर वॉज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, एट दैट सेम नाइट देयर वॉज ए लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई इन the house. Hue and cry means angry protest. His father was very angry and he was protesting, or he was raising a question that where is my those fine papers. उसके फादर बहुत नाराज़ थे और वो क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि मेरे वो कागज़ कहाँ पर है। तो बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी एंड हैड बीन लॉस्ट, एंड द फादर वाज गिविंग स्पीच और टेलिंग एवरीवन दैट माय दैट पोर्ट अथॉरिटी पेपर हैज़ गोन, वो जा चुके हैं। आई हैड लॉस्ट देम, मैंने उनको खो दिया था। वो बार बार पूछ रहे थे। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चन, फाइनली मदर केम इनटू काजियाज रूम। आफ्टर दैट द रूम वाज सर्च्ड कंप्लीटली देयर, एंड देन he personally asked question from the servant that whether they had seen those papers or not. पहले पूरे कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद में उनके फादर से जो है वो पूछा, फादर ने जाकर के नौकरों से पूछा कि भी क्या तुम लोगों ने वो कागज़ वहाँ पर देखे हैं। बट आफ्टर दैट व्हेन दे गेव आंसर नेगेटिवली, देन काजियाज मदर वेंट इनटू द काजियाज रूम। काजिया की माँ काजिया के कमरे में गई, एंड देयर शी आस्क्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम काजिया, वेदर यू हैव सीन दोज पेपर्स। काजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने हमारे कमरे के अंदर वो पेपर जो है वो शायद नहीं देखे। हैव यू सीन? काजिया रिप्लाइड, ओह यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। She gave answer and said that, oh, I got that papers, मुझे वो पेपर मिले, and I told them, मैंने उनको फाड़ दिया मेरे सरप्राइज के लिए। बस फिर क्या था? What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. Instant. Instant means right now. इंस्टेंट मीन्स तुरंत, राइट नाउ, अभी कभी। हर मदर स्क्रीम्ड, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, स्क्रीम्ड क्राई, जोर से चिल्लाना, क्राई लाउडली। स्क्रीम मीन्स क्राई लाउडली, जोर से चिल्लाना। उसकी मदर जोर से चिल्लाई, एंड सी ब्रिंग केजिया डाउन इन द डाइनिंग रूम इन फ्रंट ऑफ हर फादर, बट देयर
and she was dragged down to where father was pacing to and fro, and after that she dragged down का मतलब क्या होता है, खींच करके लाना, उसको बस उसके बाजू से पकड़ा और धकेलते हुए खींच करके उसे नीचे लाया गया। कहाँ पर लाया गया? where her father was pacing up and down। pacing, एक्चुअली pace means speed, पेस का मतलब होता है स्पीड, बट पेसिंग अप एंड डाउन, इस पूरे का मतलब क्या होता है? दिस इज अ फ्रेज। पेसिंग अप एंड डाउन का मतलब होता है चहलकदमी करना। जैसे कई बार के आदमी जो है वो थोड़ा पजल होता है तो वो अपना हाथ पीछे करता है और फिर यूं एकदम से आगे पीछे यूं चहलकदमी करना शुरू कर देता है, उसे पेसिंग अप एंड डाउन कहते हैं। हर फादर वाज पेसिंग अप डाउन देयर इन दैट रूम। उसके पिता जो है वो कमरे के अंदर अप एंड डाउन पेस कर रहे थे, चल रहे थे। और उसकी मदर ने फिर आकर के शी टोल्ड एवरीथिंग टू हर फादर, उसने आकर के सारी चीज़ें उसके पिता को बता दी। वेल ही सेड शार्पली, उसने बहुत ही तेजी से पूछा उसे, ठीक है बताओ। मदर एक्सप्लेन। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। डिड यू डू दैट? He stopped and stared to the child. Mother explained everything to her father. Then he stopped pacing there and he asked the question from Kezia. Did you do that? क्या तुमने ऐसा किया है? No, 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 no. She whispered. उसने फुसफुसाते हुए कहा। whisper मतलब फुसफुसाना। उसने फुसफुसाते हुए कहा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। Mother go up to her room. Mother go up to her room and fetch down the damn thing. तो her father instructed her mother that go down in her room and find out where she put those papers and bring them down here right now. And meanwhile also see that the child put to bed this instant, कि ये बच्चा जो है वो तुरंत अपने बिस्तर में जाकर के सो जाना चाहिए। तो लड़की जो है वो अपने कमरे में चली गई। She went into her bed. After that, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Crying too much to explain. She was crying too much to explain that why I tore those paper, but nobody listened to her. उसने चिल्ला करके कहा कि मैंने क्यों जो है इन पेपर्स को फाड़ दिया, पर किसी ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। After that she went into her bedroom and there she was seeing that the light which was coming from outside, it was making a type of pattern there, कि लाइट जो बाहर से आ रही थी वो एक प्रकार का पैटर्न जो है वो कमरे में बना रही थी। एंड शी वाज सीइंग दैट इवनिंग दोज पैटर्न्स ऑन द फ्लोर, और बस वो चुपचाप उन पैटर्न्स को फ्लोर पर देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू टाइम हर फादर केम इनटू हर रूम एंड नाउ देयर वाज अ रूलर in his hand. Ruler. There are two meanings of ruler. Ruler means शासक को भी बोलते हैं, जो शासन करता है उसे रूलर भी कहा जाता है। एंड रूलर का मतलब स्टिक भी होता है। अब यहाँ पर स्टिक के मतलब ही, स्टिक से मतलब यहाँ पे छड़ी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, कि रूलर का मतलब स्टिक भी होता है और यहाँ पर स्टिक का मतलब चिपकना भी होता है। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, जो डिफरेंस है वो आपको देखना होगा कि देयर आर लॉट ऑफ मीनिंग्स ऑफ ए सेम वर्ड, सो यू शुड आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स। सो हियर रूलर मीन्स छड़ी। ओके, सो देयर वाज ए रूलर इन हर फादर्स हैंड, ही केम इनटू हर रूम। I'm going to beat you for this, he said. And after that he said that you did a very bad thing. You tore my papers. That's why I'm going to punish you. I will beat you for this. Oh no 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 no! She screamed, hiding under the bedclothes. अब उसने एकदम से चिल्ला करके कहा, नहीं 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 मुझे मत मारो। And then she hid herself under the bedclothes. बिस्तर के जो कपड़े थे उसके नीचे उसने अपने आप को छुपा लिया। Shut up, he ordered. As she hid herself, her father gave an order. Sit up, बैठ जाओ चुपचाप, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. And after that, he said that you must taught, तुम्हें अवश्य ही सिखाया जाएगा, that you should not touch those things
that doesn't belongs to you. तुम्हें वो चीज़ें नहीं छूनी चाहिए जो तुमसे संबंधित हैं, इसलिए तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट अवश्य ही दिया जाएगा. But it was for your birthday. But she tried to explain that whatever I did all those things just for your birthday. I want to give you a pin cushion, and for that I tore those papers. But her father didn't listen to her. उसने बताने का कोशिश किया कि मैंने जो कुछ भी किया है वो केवल किसके लिए किया, आपके बर्थडे के लिए किया, पर उसके फादर ने बिल्कुल भी नहीं सुना. Down came the ruler on her little pink palm. बस केवल क्या हुआ, her father beat her with that ruler, कि उसके पिता ने उस डंडे के साथ में उसे पीटा. वो रूलर जोर से नीचे आया और उसकी वो पिंक गुलाबी सी जो हथेली है उसके ऊपर आकर के वो डंडा पड़ा. अब आप महसूस कर सकते हो, यू कैन फील व्हाट हैपेंड विद दैट गर्ल. ओके, सो for today this is okay, and tomorrow in our next video we will complete this chapter, and with that we will discuss over the questions. So if you have any problem, any type of problem, you can send me a message on my WhatsApp number, okay, or you can call me just in school hours. During the school hours you can contact with me. After that you will not call me. Okay, so thank you.